سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے۔ علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل گولڈ میڈلسٹ، علامہ امجد صدیقی، علامہ ارسلان شاہ اور حکیم ضیاء المصطفیٰ شریفی کا کہنا ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت ہر دور کے یزید کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ کربلا کا مارکا حق و باطل کا وہ مارکا ہے جس کا پیغام یہی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہم پر فرض ہے۔ بے شک تم تعداد میں کم ہو، فلسفہ شہادت امام حسین یہی ہے کہ غلط کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک فروغ عشق رسول کوٹلی لوہارا کے زیر اہتمام 2 روزہ سالانہ سید الشہداء کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت جزو ایمان ہی نہیں عین ایمان ہے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں امن اور محبت کی بات کریں، ملک میں فرقہ واریت اور مقدسات کی توہین کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور یہاں ہمیشہ اسلام کا پرچم سربلند رہے گا۔ پاکستان اہل بیت سے عشق کرنے والوں کی زمین ہے، اس لیے اس سرزمین کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ کانفرنس کے موقع پر شہدائے کربلا کے لیے قرآن خوانی، ختم شریف ادا کیا گیا اور بھرپور لنگر تقسیم کیا گیا۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اتحاد امن کونسل فاروق آباد کے جملہ اراکین نے صدر مولانا غلام مصطفیٰ حیدری کی قیادت میں یوم عاشورہ کے موقع پر چیف آفیسر جاوید احمد چوہان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ عاشورہ کے جلوس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور رہنما امن کونسل ملک محمد صدیق کی رہائش گاہ پر ڈی ایس پی صدر سرکل جاوید اقبال اور ایس ایچ او سٹی خرم شہزاد ڈوگر سے ملاقات کی اور اہم امور پر گفتگو کے ساتھ ساتھ جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات اور صفائی ستھرائی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ پر چیف آفیسر جاوید احمد چوہان اور ایس ایچ او سٹی خرم شہزاد ڈوگر کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کمبر شہداد کوٹ سے۔ کمبر تھانہ نصیر آباد پولیس کی بہترین کارروائی۔ منشیات سپلائر گینگ کا ایک اہم سرغنہ بڑی مقدار میں گٹکا، مین پوڑی اور چنگچی رکشہ سمیت گرفتار ہو گیا۔ ایس ایس پی کمبر شہداد کو ڈاکٹر سمیر نور چنہ کی ہدایات پر تھانہ نصیر آباد پولیس کی منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ نصیر آباد انسپکٹر محمد یاسین ٹگر ماہ پولیس سٹاف کا دوران گشت مخفی اطلاع ملنے پر چیکنگ کے دوران نصیر آباد بگن روڈ نیز ڈگری کالج نصیر آباد سے کارروائی کر کے ایک منشیات گٹکا سپلائر گینگ کا کارندہ 478 کلو گرام گٹکا سپاری اور چنگچی رکشے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار منشیات سپلائر کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا اعلیٰ کوالٹی کا گٹکا سپاری 478 کلو گرام پاکٹس کی شکل میں چنگچی رکشہ سمیت ریکور کر کے نصیر آباد پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ اب خبر شامل کریں گے پاک پتن سے، جہاں پر سرکاری اسکولوں میں طالب علموں سے جبری مشقت اور مزدوری کروانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ پاک پتن کے گورنمنٹ ہائی اسکول فرید کوٹ میں بچوں سے باتھ روم اسکول کی صفائی اور مشقت کی فوٹیج آن نیوز نے موصول کر لی۔ مزید اپڈیٹ کریں گے پاک پتن سے نمائندہ آن نیوز میاں احمد خان بٹو۔ جی بالکل، پاک پتن کے اسکولوں میں طالب علموں سے جبری مشقت اور مزدوری کروانے کا سلسلہ تاحال تھام نہ سکا۔ پاک پتن کے گورنمنٹ ہائی اسکول فرید کوٹ میں بچوں سے باتھ روم اسکول کی صفائی اور مشقت کی فوٹیج میڈیا نے موصول کر لی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول فرید کوٹ میں ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ بچوں سے مشقت کروا رہے ہیں۔ بچوں سے باتھ روم صاف کروانے کے ساتھ ساتھ پورے اسکول میں جھاڑو بھی لگوا رہے ہیں۔ اہل علاقہ اور بچوں نے انکشاف کیا کہ ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ روزانہ کی بنیاد پر بچوں سے جبری مشقت اور باتھ روم صاف کرواتے ہیں۔ جو طالب علم باتھ روم صاف نہ کرے اور کام نہیں کرتے اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اہل علاقہ نے کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے فوری نوٹس لینے اور ہیڈ ماسٹر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میاں احمد خان بٹو، آن نیوز، پاک پتن۔ محکمہ تعلیم میہر کی لوئر سٹاف ملازم کا چھوٹے بچوں کے ہمراہ تنخواہ نہ ملنے کے خلاف احتجاج، تنخواہ جاری کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم میہر کی لوئر سٹاف ملازم عبد القادر مغل کا چھوٹے بچوں کے ہمراہ تنخواہ نہ ملنے کے خلاف میہر پریس کلب کے باہر احتجاج۔ 2012 سے گاؤں فضل آگرو کے اسکول میں لوئر سٹاف ملازم ہوں، کئی سال ہو گئے ہیں مگر تنخواہ نہیں مل رہی۔ غربت کی وجہ سے بچے فاقے پر ہیں، ڈسٹرکٹ آفس کرپشن کا گڑھ ہے، کوئی سنتا ہی نہیں۔ منتخب اراکین اسمبلی کو بار بار شکایت کی ہے مگر انصاف نہیں ہو رہا۔ اگر محکمہ تعلیم نے تنخواہ جاری نہیں کی تو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن خدمت آپ کی دہلیز پر لالیاں میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے۔ سیوریج کے ناقص انتظامات کی وجہ سے شہری اور بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ انتظامیہ کی پر اسرار خاموشی پر اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق
जलालिया में वजीर आला पंजाब का विजन खिदमत आपकी दहलीज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकिस मनसूबाबंदी और इंतजामिया की जानिब से सीवरेज के नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। मोहल्ला हुजरा रोड के मकीनों के घर भी सीवरेज के गंदे पानी की नजर हो गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को कहा है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शहरियों का कहना है कि इस जोहड़ की वजह से हम और हमारे बच्चे मुतादिद बीमारियों का शिकार हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इसका जल्द से जल्द नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ओकाड़ा से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। ओकाड़ा के नवाही गांव 15-1R में बाउले कुत्ते के हमले से 6 कमसिन तालिबात जख्मी हो गयीं। जख्मी होने वाली तालिबात को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल किया गया। 21 रोज के दौरान कुत्तों के काटने से ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले मुतासिरा अफराद की तादाद 132 हो गई। तफसीलात के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही गांव 15-1R की रिहायशी तालिबात तालीम के हसूल के लिए स्कूल जा रही थी कि रास्ते में अचानक बाउले कुत्ते ने हमला कर दिया और कुत्ते ने 6 तालिबात अलीजा, सानिया, इकरा, जोहरा, जन्नत वगैरह को काटते हुए जख्मी कर दिया। तालिबात की चीखों पुकार पर लोग आए, उन्होंने तालिबात को कुत्ते से निजात दिलाई। कुत्ता मौका से गायब हो गया। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई और तालिबात को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर तालिबात को तिब्बी सहूलियत फराहम की गई। ये अमर काबिल जिक्र है कि 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक कुत्तों के हमले से 132 अफराद मुतासिर हुए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से तिब्बी इमदाद फराहम की गई। लोगों ने आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया से अपील की है। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद मुरीद व माइनर पर नहरी पानी की खुलेआम चोरी। नवाही गांव गंगापुर से 8-10 एकड़ फासले पर बजानिब मशरिक मुरीद व माइनर पर कट लगाकर नहरी पानी चोरी किया जा रहा है। धान की फसल काश्त करने के बाद पानी चोरी की वारदातें अरूज पर पहुंच जाती हैं। अक्सर जगहों पर महकमा अनहार का मुतल्लिका अमला, बेलदार, मेट, ओवरसेयर मुलविस होते हैं। बाकायदा मंसूबे के तहत रकम इकट्ठी की जाती है और हस्बे ज़ाबिता रिक्लेमेशन मोगा मंजूर करवा लिया जाता है और फिर मंजूर शुदा साइज के बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक मोगे का साइज बड़ा करके पानी चोरी किया जाता है। बाज़ औक़ात महकमाना मिली भगत से माइनर्स पर कट लगा दिया जाता है और कई जगहों पर बजरिया हैवी पाइप पानी चोरी किया जाता है और बाज़ औक़ात वडेरे जिम्मेदार अपनी मनमानी करते हुए किसी को खातिर में नहीं लाते और दीदा दलेरी के साथ पानी चोरी करने के लिए टिक्की लगा लेते हैं। गुज़िश्ता माह मंडी सादिकगंज भेड़वाला गांव के करीब पानी चोरी अरूज पर थी, जिसका नजारा चीफ इंजीनियर बहावलपुर, एक्सियन फोर्ड व STO मौका पर कर चुके हैं, लेकिन पानी चोरी नहीं रुक सकी। नौशहरा माइनर फोर्डवा और अब मुरीद व माइनर पर हस्बे साबिक पानी चोरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से टेल पर मौजूद काश्तकार पानी की किल्लत का शिकार और परेशानी से दो चार हैं। खबर शामिल करते हैं शेखोपुरा से। इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि सैयदना हजरत इमाम हुसैन अमन के दाई और पैगंबर थे। उनकी शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए गैरत और हमियत का बेहतरीन नमूना है, जिसे मशले राह बनाकर ही इस्लाम के आफाकी पैगाम को फैलाया और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाया जा सकता है। जिस तरह 1400 साल पहले रियासत मदीना में मौजूद यहूद नसारा को मुसलमानों का इत्तेहाद कबूल नहीं था, उसी तरह आज भी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद उन्हें कबूल नहीं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खातिर जो भरपूर काविशें बरोकार ला रहे हैं, वो जरूर रंग लाएंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, शाम, इराक और फलस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी इसका बेयन सबूत है कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों को कुचलने के दर पे हैं और एटमी पाकिस्तान उनका बड़ा टारगेट है। वतन अजीज के खिलाफ उनकी जारी साजिशों को नाकाम बनाने और पाकिस्तान की हिफाजत, सलामती और क़याम अमन की खातिर हर फर्द को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा और इस अज़्म का हमेशा यादा करना होगा कि हम उसवा हुसैनी और उसवा आलो असहाब रसूल अलैहि रिजवान पर अमल करते हुए वतन अजीज की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदात की हिफाजत और क़याम अमन और इत्तेहाद उम्मत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल आलमी इस्तेमाल के लिए मकाफाते अमल है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला रहनुमा अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि वाक़या करबला ने मुसलमानों और इंसानियत के लिए दर्ज छोड़ा है कि जुल्म के खिलाफ हर हाल में आवाज बुलंद की जानी चाहिए। आज मकबूजा कश्मीर के अवाम हुसैनी किरदार का मुजाहरा करके हिंदुस्तान जैसी जालिम और गासिब ताकत का मुकाबला कर रहे हैं।
सरजमीन कश्मीर करबला का मंजर पेश कर रही है, उसके बावजूद कश्मीरी अवाम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजीम मकासद के हसूल व हक परस्ती की जिद्दोजहद करने वालों के लिए वाक़या करबला रहनुमाई फराहम करता है। हमें अहद करना चाहिए कि हम अपनी कौमी जिंदगी में अखुवत, हम आहंगी और कुर्बानी के जज्बे को फरोग देंगे और अपनी सफ़ों में नज़्म ज़ब्त और यकजहती पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इमाम आली मकाम और उनके साथियों की शहादतें ऐसी पाकीज़ा मिसाल हैं जिन्हें सामने रख कर हम दीन मुबीन की सरबुलंदी की खातिर भरपूर अमली किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत, अमन, रवादारी और भाईचारे की फिजा को फरोग देना होगा ताकि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर कौमी असेंबली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि वाक़या करबला जहां बातिल के सामने डट जाने का दर्ज देता है, वहां पर ही इत्तेहाद का भी दर्ज देता है। मार्का करबला हक व बातिल की जंग है जिसमें कुर्बान होकर भी हक फतह याब हुआ। जानिसाराने मुस्तफ़ा ने बारगाहे इलाही में जानों के नजराने पेश करके वफादारी को दुनिया में ज़रूर मसल बना दिया। आज जरूरत है कि अहले बैत और सहाबा की तालीमात को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि बारगाहे रिसालत में सैयदना हुसनैन करीमैन की अज़मत व महबूबियत का ये आलम है कि अक्सर खातमुल नबीयीन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोनों के लिए दुआएं मांगते और लोगों को आपके साथ मोहब्बत रखने की ताकीद फरमाते। उन्होंने कहा कि इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ नफासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने यजीदी कुव्वतों के खिलाफ शरीयत मोहम्मदी का दिफा किया। वाक़या करबला से सब्र और इस्तकामत का दर्स मिलता है। उसवा हुसैनी अपना कर तागूती ताकतों का मुकाबला करें। खबर शामिल करते हैं लाहौर। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। लाहौर शफीकाबाद पुलिस के SHO मलिक अशरफ ने नकब जनी की वारदात करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मोहल्लेदारान और पुलिस के नाक में चोरी की वारदातें करके दम कर रखा था। SHO शफीकाबाद मलिक अशरफ ने नकब जनी करने वाले मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से वारदात के 17 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम की जानिब से दर्जनों चोरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया गया है और तफ्तीशी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है। अब देखना ये है कि SHO शफीकाबाद मलिक अशरफ की तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी शहरियों की लूटी हुई रकम की बरामदगी कर पाते हैं या मुलजिम को सीधा जेल भिजवाते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बिहाड़ी मेहर आबिद हुसैन से। पंजाब बैतुल माल और केयर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बिहाड़ी में मुस्तहिक मर्दों ख्वातीन को सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और अमीन बैतुल माल ने माली इमदाद के चेक्स और सलाई मशीनें तकसीम की। पंजाब बैतुल माल और केयर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बिहाड़ी तहसील कौंसल हॉल में मुस्तहिकीन में इमदादी चेक्स और सलाई मशीनें तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची, अमीन बैतुल माल मलिक मोहम्मद आजम, सदर जनूबी पंजाब नूर खान भाबा के अलावा दीगर भी शरीक थे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुस्तहिक अफराद को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए कोशिश में है, जबकि हुकूमत मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद के चेक्स और ख्वातीन को रोजगार के लिए केयर वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से सलाई मशीनें दे रही है। अमीन पंजाब बैतुल माल मलिक मोहम्मद आजम ने कहा कि इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे हैं। आज की तकरीब में ख्वातीन के लिए 125 सलाई मशीनें और माली इमदाद के लिए मुस्तहिकीन को 6,85,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि वजीर आजम के विजन के मुताबिक पंजाब के हर शख्स को रोजगार फराहम किया जा सके। तकरीब में MPA रॉय, जहूर अहमद खरल, आलमगीर खान, जिले चेयरमैन पंजाब बैतुल माल चौधरी मुश्ताक अहमद गुज्जर, साइमा नौरीन, फारीना रिजवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशफाकुर रहमान खान और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जाफर चौधरी भी मौजूद थे। तकरीब के आखिर में मुस्तहिकीन में माली इमदाद के चेक्स और सलाई मशीनें भी तकसीम की गयी। शेखुबरा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि जालिम और फासी को फाजिर का साथ न देना हुसैनियत है। इमाम आली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश करके कयामत तक के लिए ये असूल मुकर्रर कर दिया कि शायर दीन इक़्तिदार परस्तों के रहमो करम पर नहीं छोड़े जा सकते। नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी का तस्करा ईमान की मजबूती के लिए जरूरी है। अहले ईमान के लिए वाक़या करबला कुराए अर्ज का सबसे बड़ा कर्बनाक हादसानिया है। उन्होंने कहा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनफरादियत किसी और कुर्बानी में नजर नहीं आती। यही वजह है कि वाक़या करबला के तस्करा पर गैर मुस्लिमों की आंखें भी तर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो बदबख्त हैं जिनकी आंखों में मसाइब अहले बैत के जिक्र पर आंसू नहीं आते और वह तावीलें ढूंढते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक तबका फिक्र और मसलिक के इमाम नहीं हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके इमाम हैं।
वो दीन मुस्तफ़ा के वारिस और शरीयत मोहम्मदी के शारे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान पाकीज़ा इखलाक और ईमान वाली जिंदगी के लिए सीरत हुसैन अलैहिस्सलाम का मुतालिया करें। नवासे रसूल के साथ इजहार अकीदत का बेहतरीन तरीका ये है कि किसी जालिम का साथ ना दिया जाए और किसी मजलूम की बद्दुआ ना ली जाए। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारे जितनी भी लीडरशिप है, तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये यौम तसीस सिल्वर जुबली की ये जो खुशियाँ हैं, हम सब इसको मना रहे हैं इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह ताला तरक्की के एक नए दौर में दाखिल होगा। मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा, जिस तरह दहशतगर्दी का खात्मा किया गया है, इसी तरह मुल्क से महंगाई का भी खात्मा होगा। अवाम पुरुम्मीद रहें, इंशाअल्लाह ताला ये आज़माइशों का दौर जो है तकरीबन ख़त्म होने वाला है और एक नया दौर जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें हर पाकिस्तानी को जो है एक खुशहाल मुल्क मिलेगा, मुल्क तरक्की की राह पे चलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो एक मसीहा का किरदार अदा करेंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम वर्करों को, तमाम पाकिस्तानियों को ये यौम तसीस 25वां जो है मुबारक हो। बहुत बहुत अस्सलाम। पंचगोर में नेशनल पार्टी की जानिब से ग्रैंड शमूलियती तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला भर से मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से सैकड़ों सियासी समाजी वर्कर्स की नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। पंचगोर चितकान से मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत JUI के साबिक रहनुमा हाजी मोहम्मद अयूब दवारी ने अपने सैकड़ों साथियों के हमरा मुख्तलिफ सियासी जमातों पंचगोर गवारगो से हबीबुल्लाह बलोच ने BNP अवामी से मुस्ताफी होकर नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शमूलियती प्रोग्राम के मेहमान खास नेशनल पार्टी के सूबाई नायब सदर और साबिक सूबाई वजीर सेहत मीर रहमत साले बलोच थे। मुनक़िदा शमूलियती प्रोग्राम से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाजी मोहम्मद अयूब दवारी ने कहा कि नेशनल पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के बाद BNP अवामी और बाद में जमीयत में शामिल हो गए। इस दौरान अपनी तजर्बात से महसूस किया कि नेशनल पार्टी इस वक्त बलोचिस्तान में वाहिद मास पार्टी है जो बलोच साहिल वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। बलोच अवाम की वाहिद नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। दूसरी पार्टियों में होते हुए ये महसूस किया कि अगर इस सरजमीन की हिफाजत करने के लिए कोई सियासी पार्टी है तो वो नेशनल पार्टी है, जिसमें आला तालीम सियासी रहनुमा शामिल हैं और वो बेहतरीन तरीके से इस सरजमीन और बलोचिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता अदवार में नेशनल पार्टी हुकूमत में शामिल थी और 2018 के इलेक्शन में उन्हें एक सीट जीतने नहीं दी गई और इससे साफ जाहिर है कि नेशनल पार्टी को इस सरजमीन से मोहब्बत और यहाँ के गरीब अवाम की जंग लड़ने की सजा दी गई है। नेशनल पार्टी एक अवामी समंदर और उसमें दोबारा शामिल होने पर खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक बार फिर एक तालीम याफ्ता और बलोचिस्तान से मोहब्बत करने वाली जमात में शामिल हो रहा हूँ। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा यौम आशूरा के दौरान हाई अलर्ट रही। इस दौरान तमाम रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की जेर निगरानी जिला भर में शेखुपुरा मुरीद के शरकपुर शरीफ, खानका डोगरा और नारंग मंडी समेत मजमूई तौर पर 5 बड़ी मजालिस और जुलूसों को मुकम्मल मेडिकल कोर फ्राहम किया। इन तमाम मजालिस और जुलूसों में रेस्क्यू 1122 की 8 एम्बुलेंसेज, 8 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज, 3 फायर व्हीकल्स के साथ 150 रेस्क्यू एहलकारान और 60 रेस्क्यू स्काउट्स ने हिस्सा लिया। इलावा अजीम 18 मोबाइल रेस्क्यू पोस्टें भी कायम की गई ताकि बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। तमाम जुलूसों के मेडिकल कोर के दौरान 1801 अजादारों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की गई, जबकि 65 अजादारों को तिब्बी इमदाद देकर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तहम रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुल 2063 अजादारों को मेडिकल कोर फ्राहम किया, जिनमें 1988 अजादारों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 75 अजादारों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुहर्रम हराम के तमाम जुलूसों और मजालिस के दौरान जिला भर के रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई ईमानदारी और जांफिशानी से खिदमत सर अंजाम दी। इस मौका पर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने रेस्क्यूअर्स की मुनज़्ज़म कोशिशों को सराहा और मुहर्रम हराम के तमाम मौके पर बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने पर उनको खिराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं शहर सियालकोट के गाँव पड़ोपी अराइया से, जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में हाजी मकबूल हुसैन और हाजी अशरफ और उनके साहिबजादा राहिल अशरफ ने वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह किया, जिस पर पड़ोपी अराइया वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिस पर गाँव पड़ोपी अराइया के लोगों ने शुक्रिया अदा किया और आखिर में हाजी महमूद अहमद, मेहर नकाश एडवोकेट, मियां मोहम्मद सजाद एडवोकेट, मेहर फरमान अली और हाजी मोहम्मद सरवर, मियां
अजीम ने शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पड़ोपी अराइया में साफ पीने का पानी न होने की वजह से मौलिक बीमारियां जन्म ले रही थीं, जिससे इलाके के लोग परेशान थे। वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह लोगों के लिए बाइसे फख्र है, जिससे गाँव के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा मुख्तार मलिक। साबिक MNA जनाब जमशेद खान दस्ती के बड़े भाई मुश्ताक खान दस्ती को गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरगढ़ में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। MPA मोहतरमा शाजिया आबिद, जिलाई सदर पीपल्स पार्टी चौधरी सरवर अब्बास एडवोकेट, पीपल्स पार्टी किसान विंग के जिलाई जनरल सेक्रेटरी शाहिद खान लाशारी, सरदार यूसुफ खान कबूल, मुनीर नासिर, मिराजुद्दीन मजारी, मलिक एहसान, इमरान, मलिक सब्तैन, मियां नूर इलाही, मलिक यासीन, हमशीरा महार, नदीम सयाल और दीगर ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। इस मौका पर पीपल्स पार्टी किसान विंग के जिलाई जनरल सेक्रेटरी शाहिद खान लाशारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मजलूम की पार्टी है। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी है और मजलूम का साथ दिया है। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद खान दस्ती के भाई का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म है। हम इस जुल्म के खिलाफ हैं और मजलूम के साथ हैं। सालिम सफाक कातिल, दरिंदा सिफ्त, हैवान नुमा इंसान किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। दो ग्रुपों में तसादुम। तफसील के मुताबिक थाना सदर की हदूद में वाक़या नवाही गांव चक नंबर 142 EB में मामूली तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़ये की इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया, जहां इमरजेंसी वार्ड में दौरान इलाज दोनों ग्रुपों के फ्रीकैन के आपस में दोबारा तसादुम से इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। दोनों फ्रीकैन ने इमरजेंसी वार्ड में मौजूद ड्रिप स्टैंड समेत औजारों का आजादाना इस्तेमाल किया और SHO थाना सदर और मकामी सहाफी और अस्पताल के अमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर DSP हाजी अशरफ तबस्सुम पुलिस की भारी नफरी के हमरा अस्पताल पहुंच गए और दोनों फ्रीकैन के मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हबीबाबाद में मुहर्रम के सिलसिले में अलहम्द प्रॉपर्टी के ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुहर्रम के सिलसिले में चौधरी एसोसिएट्स एंड अलहम्द प्रॉपर्टी ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत करते हुए याद मुस्तफा से दिलों को मुनव्वर किया। महफिल नात में नात खानों ने वाक़या करबला बयान करते हुए कहा कि वाक़या करबला हमें हक कोई और बातिल के सामने डट जाने का सबक देता है। रहती दुनिया तक अहले बैत की इस्लाम के लिए इस अजीम कुर्बानी को याद रखा जाएगा। कंदकोट से खबर शामिल करते हैं। सूबाई वज़रा का कंदकोट घोटकी पुल दौरा। ब्रिज के तामीराती काम की कंपनी और जिला इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी गई। कंदकोट घोटकी पुल मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी निगरानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। दरिया की सतह बढ़ने से पुल का काम बंद है। अक्टूबर के महीने में तेजी से काम शुरू किया जाएगा। कुछ टेक्निकल मामलात की वजह से पुल का काम बंद है। इन इश्यूज को चेयरमैन को आगाह किया जाएगा। इस पुल की तामीर से मुआशी तरक्की होगी। प्रेस क्लब पर शर पसंदों के हमले का नोटिस लेकर SSP से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बात करूंगा। जॉइंट एफर्ट से ही काम होगा और हम सब मिलके जब इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये शहर खूबसूरत बनेगा। अब ये कंदकोट घोटकी ब्रिज एक मेरे मरहूम वालिद का ख्वाब था। आप आज देखें उससे कितना इधर इलाके में रोज़गार मिलेगा, कितना इलाके में काम होगा और कारोबार। आप देखें कि बलूचिस्तान से पंजाब जो ट्रैफिक जाएगी उससे आप देखें कि कितना बेहतरीन एक निज़ाम बनेगा और अमन अमान की सूरत हाल आप देखेंगे कि कितना बेहतर पहले क्या था, इस वक्त क्या है और जब यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो बढ़ेगा तब क्या होगा। भान सईदाबाद के रिहायशी दो बहनों की जिरके के जरिए जबरदस्ती शादी कराने और उन्हें घर में कैद करने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक भान सईदाबाद के मेमन मोहल्ले की रिहायशी खातून हिना मेमन और अनिला अलमारूफ अना मेमन ससुराल के पास मांझत शहर में कैद हैं। उर्सा का इल्जाम, लड़कियों से मुलाकात के लिए जाने वाले रिश्तेदारों पर तशद्दुद, फायरिंग। लड़कियों के उर्सा दादी जुबैदा मेमन और भाई राशिद मेमन औरतों समेत वाक़ये के खिलाफ एहतजाज किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 साल पहले पोते राशिद मेमन ने अपनी कजन शाइला गहनीर से पसंद की शादी की थी, जिसके बाद में जिरके में 2 बहनों को जुर्माने के तौर पर जबरदस्ती शादी कराई गई। 2 साल तक लड़कियों को कैद में रखा गया है। लड़कियों पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने SSP जामशोरू से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर कैद में मौजूद 2 लड़कियों को आजाद करा के इंसाफ फराहम किया जाए। शादी कई आहे वरी मुंहिंजे सोहरे वीचारो गरीब थी करे उन ॿ संग बि ॾिना आहिनि। असां ग़रीब आहियूं, असांखे ओई भाई केर बि कोन्हे को, त मां वई हेॾड़ी मां खणी वई आहियां, हिनखे घुटा ॾिना अथनि,
मूंखे लकड़ हया अथनि सोनी चेन लाहे विया आहिनि गले मां। असांजे मां मुराद अली शाह खे अपील थी कयां असांजे ग़रीबनि जी मदद करे। मुंहिंजे सहुरे ॾे ॾाढो कर्ज़ु आहे, असां हुननि सां पुॼी नथा सघूं। केरु केरु विड़िया तव्हां सां? मुंहिंजो भाउ फ़ौजी अज़ीम ऐं ॿिया भाइर बि मुंहिंजा आहिनि नंढा, उहे लकड़ खयां अथनि, पिस्तौल खयनि, फायर कयो अथनि, मथे छित में आया अथनि, उहा सिर बि छित मां किरी पई आहे, उहा मुंहिंजे चाचे गुलूअ खे लॻी आहे टंग में, तव्हां उनखे बि ॾिसी सघो था। मुंहिंजो सहुरो ग़रीब आहे, उन ते इलाही कर्ज़ु आहे, असां कुझु नथा करे सघूं। हो मुंहिंजे मुड़ुस खे चवंदा तूं भले केतिरा ॿार ॼणी ॾे त तुंहिंजे मुड़ुस खे असां मारींदासीं। मुंहिंजे मुड़ुस खे ख़तरो आहे हिननि मां मुराद अली शाह खे अपील थी कयां असांखे उन्हनि मां ख़तरो हटायो वञे, महिरबानी करे। मसइलो थिया, मूं ॿ पोटियूं ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि खां असां मिलण वियासीं। मां वियसि, मुंहिंजी नुंहुं हली, जंहिंजी धीअर आहिनि, छोकिरी संदुनि जी भाउ उहा बि हली। असां अञा घर पहुतासीं न त बसि असांखे यकदमि पिस्तौलनि जा धक मारीनि पिया अचनि, तव्हांखे असां अॼु मारींदासीं, अॼु जहिड़ो तव्हांखे हितां न कढंदासीं। आया छो आयो असां? अब असां नियाणी सां मिलण आया आहियूं, 1.5 साल थियो आहे, असां बच्चा कोन ॾिठा आहिनि, असां बच्चा न मिलण न वञूं। उन त असांखे ॾाढो मारियो अथनि, मूंखे बि गोगा वोगा ॾिना अथनि। ॿ मरी ज़ाल, मुंहिंजो पुटु बि कोन, हे मुंहिंजो भाइटियो आहे, ॿियो मुंहिंजो भाउ वीचारो हलियो, उहो मुंहिंजो भाइटियो भाउ बि किरी पियो, उन वीचारे खे बि ॾिसण ढक लॻा आहिनि गोॾनि में हिननि में। असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे यार? मां पंहिंजो अपील थी कयां त मुंहिंजी पंहिंजे बन आहियो साईं हाजन शाह, मुराद अली शाह, दा सिद्दीक़, ये मुंहिंजो अपील अथव ग़रीबनि जी। मुंहिंजे यतीम रशीद, मुंहिंजो पुटु यतीम ग़रीब नवीद मुज़फ़र वारनि जे आम्हूं साम्हूं वेठो अथव, न असां कंहिं पाड़े सां न ओड़े सां, असां नियाणियूं ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे मिलण असांजा विड़िया आहिनि। अज़ीम फ़ौजी आहे ऐं गुलाम नसीर, अब इहो ॾिसण त ॿिए जो नालो छा आहे? कबूल। ॾाढो हिननि में घणा आहिनि, घणा गंभीर आहिनि, पर तूं नूं जाने पुटनि जूं नालियूं ॿुधाए। हा, सद्दाम बहादुर, जिन खे मूं संग ॾिना आहिनि, उहे बि असां सां विड़िया आहिनि। नंढड़ी मुंहिंजी, जंहिंखे मूं पोटी ॾिनी आहे, उन मुंहिंजी मारी आहे, त असीं तोखे मारींदासीं। सॻो सोनो छोकिरीअ खां लाहे वठो अथनि, पंहिंजे भेण खां, मुंहिंजे नुंहुं खे पातल हुओ, उहो बि छिके हुनखे मारियो अथनि, उन वीचारीअ खे बि मारियो अथनि, सॻो बि लाथो अथनि। हाणे असां ग़रीबनि जी अदालत कयो, असां कॾहिं मीडिया ते न चढ़िया आहियूं, न कंहिंजी दाह कई अथऊं। अॼु अंदरि सड़े खां मां दाहूं कयां थी त अॼु असां सां नाजाइज़ी थी आहे बाक़ाइदे। तंहिंजो शायदि हिकु रब अथनि, ॿिए सभु घर जा भाती आहिनि। मुंहिंजे भाइटनि असांखे छॾायो आहे, हिकिड़ी मारियूं पई, ॿी छॾायूं पई। हिते मूंखे हीअं वरितई थी, तोखे मां मारींदुसि, तोखे पिस्तौल हणंदुसि। हिन मुंहिंजे भाइटे ॾिठो, हा हेज मूंखे निशान थी बा, हेॾा मुंहिंजे मथां चढ़ी वियो हलियो। मां चयो तूं मूंखे मार, मां चयोमांसि तूं मूंखे भली मार, मां वेठी आहियां, तूं मूंखे मार। पिस्तौल बि सिधो कयईं, पर हुन ॿिए वरी फुरियुसि, कुआड़ियूं खणी आया, लठूं खणी आया। कूड़ न अथव, सभु ॻाल्हि सची अथव। 1.5 साल में असां न कुझु आहियूं, असां सभु कयो आहे। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार मुमताज खान चांग का दौरा फाजिलपुर राजनपुर मनसूख। हम अपनी चांग बरादरी के हर दुख सुख में शरीक होंगे। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मैं सियासत गरीबों की खिदमत करने के लिए करता हूँ। मैं बलोच पंजाबी सराइकी सबका एहतराम करता हूँ। फाजिलपुर में बेहतरीन दफ्तर और डेरा बनाकर सियासत का आगाज करेंगे। एमपीए पीपल्स पार्टी के सरदार मुमताज खान चांग से बातचीत में सरदार अब्दुल सत्तार खान की दुआएं और कोशिशें हमारे साथ हैं और जाती मसरूफियत की वजह से ना आ सके। अगले हफ्ते शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हुकूमत पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट और गर्ल्स डिग्री कॉलेज मॉडल टाउन के BS ब्लॉक के लिए मुकम्मल फंड्स जारी कर दिए। मंसूबों को इसी साल, जबकि पुल डॉट चौक पर मॉन्यूमेंट की तामीर के लिए 2 माह में मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने तरक्याती मंसूबों के मुआयने के दौरान अफसरान को टास्क दे दिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहर के जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। डायरेक्टर डेवलपमेंट अवैदुल रशीद
डेप्यूटी डायरेक्टर वसीम अख्तर जतोई, पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान, मोहम्मद इकराम मलिक, DGPHA सैयद तनवीर मुर्तजा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मोहम्मद वकास, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद अमजद, शाहिद अहमद और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए टाइम लाइन्स तलब कर ली। उन्होंने पुल डॉट पर मॉन्यूमेंट 2 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए मॉन्यूमेंट के लिए वर्किंग प्लान तलब कर लिया। कमिश्नर ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज मॉडल टाउन में BS ब्लॉक और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट इसी साल मुकम्मल करने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भी S ब्लॉक और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट के मुकम्मल फंड्स जारी कर दिए हैं, इसलिए मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट पर 15 करोड़ रुपए और डिग्री कॉलेज मॉडल टाउन में एकेडमिक ब्लॉक और 4 दीवारी की तामीर पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर ने लेडीज पार्क की बहाली का काम तेजतर करने की हिदायत जारी की। उन्होंने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सराय की जल्द तकमील के लिए पॉलिटिकल असिस्टेंट को निगरानी की हिदायत की। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।